لیکن 2019 کے بعد مدارس بورڈ کے حوالے سے حکومت نے پالیسی کو تبدیل کیا اور ہمارے مطالبے پر کیا کہ وہ بڑے بڑے ادارے جن کے ساتھ ہزاروں مدارس وابستہ ہیں ان کو بھی یہ حق دے دیا جائے کہ وہ بھی بورڈ جو ہے رجسٹرڈ کر سکیں، بورڈ بنا سکیں۔ حکومت نے اس کے اوپر بہت لمبی مشاورت کی، کئی اجتماع ہوئے، ہمارے یہ تمام اکابرین ان اجتماعات میں موجود تھے اور فیصلہ ہوا کہ مدارس کے بورڈوں کے حوالے سے 5 کی بجائے جو صلاحیت رکھتا ہے، قدرت اور طاقت رکھتا ہے، جس کے پاس مدارس ہیں ان کو بورڈ کا حق دے دیا جائے۔ ہمارا بہت عرصے سے ایک مطالبہ تھا کہ بلکہ میں نے تو پاکستان بننے سے بعد کا کہا، مولانا مفتی عبد الرحیم صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، یہ تو 1835 سے مطالبہ تھا کہ مدرسے کی تعلیم کو بھی حکومتی سطح پر تعلیم تسلیم کیا جائے، کیونکہ ہماری رجسٹریشن وزارت صنعت کے ساتھ ہوتی تھی۔ یہ مطالبہ سب کا متفقہ تھا، کوئی اس میں ایسا نہیں تھا جو یہ مطالبہ نہ کرتا ہو، کیونکہ مدرسے کا کام تعلیم ہے۔ اور پھر ہوتا یہ تھا کہ ہم نے اگر سند لے لی ہے تو پھر بھی وزارت تعلیم کے پاس آتے تھے، HECP کے پاس، وزارت تعلیم سے لیٹر، فلانا لیٹر، فلانا لیٹر۔ تو 2019 میں یہ فیصلہ ہوا کہ نئے بورڈ بنائے جائیں گے، اور جو میں نے آپ کو حضرات کے سامنے عرض کیے ہیں کہ 10 نئے بورڈ جو ہیں وہ اپلائی کیے گئے، اس کا معیار دیکھا گیا اور 10 نئے بورڈ قائم کر دیے گئے۔ آج الحمدللہ یہ تمام بھرپور طریقے سے کام کر رہے ہیں، آپ کو علم میں ہے، میڈیا کو علم میں ہے، کوئی مخفی نہیں ہے اس سے۔ ایک بات میں بڑی واضح کرنا چاہتا ہوں کہ جیسے ابھی مولانا عبد الخبیر آزاد صاحب نے کہا کہ ہم تو خود مدرسے کے طالب علم ہیں، مدرسے سے پڑھے ہیں اور مدرسے پڑھانے والوں کی اولاد ہیں، مدرسے بنانے والوں کی اولاد ہیں، تو کیسے ممکن ہے کہ مدرسے کا کوئی معاملہ آئے اور ہم اس پہ کمپرومائز کر جائیں؟ میں بڑی ذمہ داری سے یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ جتنے اکابرین یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، جب بھی مدرسے کا کوئی معاملہ آیا، صف اول میں کھڑے ہو کر انہوں نے مدرسے کی، مدرسے کے طلباء کی، مدرسے کے اساتذہ کی، مدرسے کے عزت و وقار کی جنگ لڑی ہے۔ پھر ایک خوف بلا وجہ ہر وقت ہمارے اوپر مسلط کر دیا جاتا تھا کہ جناب بیرونی ایجنڈا۔ کیا کوئی بیرونی ایجنڈے والا آ کے مجھے یہ کہہ سکتا ہے کہ تم اپنے مدرسے میں بخاری شریف نہ پڑھاؤ، تم اپنے مدرسے میں مسلم شریف نہ پڑھاؤ، تم اپنے مدرسے کے اندر جو ہے تحاوی نہ پڑھاؤ؟ کیسے ممکن ہے کہ کوئی آگے مجھے کہے کہ تمہارے مدرسے میں دورہ تفسیر نہیں ہونا چاہیے؟ کیا کوئی مانے گا اس کو؟ کیسے ممکن ہے کہ کوئی آگے کہے کہ سیرت سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے مدرسے میں نہ پڑھائیں، کتاب الجہاد نہ پڑھائیں؟ یہ ممکن نہیں ہے۔ لہٰذا یہ جو ایک خوف ہمارے اوپر ہر وقت مسلط کیا جاتا ہے کہ کوئی بیرونی ایجنڈا آئے گا اور مدرسہ جو ہے وہ کوئی ایک تنکا ہے، وہ ہوا سے اڑ کے چلا جائے گا۔ میرے عزیز بھائی، مدرسے کے ساتھ تو 30 لاکھ طلباء وابستہ ہیں، لاکھوں اساتذہ وابستہ ہیں۔ کوئی مدرسے کو بڑی بڑی جامعات اس وقت یونیورسٹی ہیں، منہاج القرآن کو لے لیں، جامعۃ الرشید کو لے لیں، عروۃ الوثقیٰ کو لے لیں، حضرت مولانا طیب طاہری صاحب کا، یعنی ابھی ٹائم کم ہے، میں اگر سب اداروں کے نام لوں تو چنگوانی صاحب کے ادارے لے لیں۔ یعنی یہ کوئی بات ہے کہ ایک تیز ہوا آئے گی اور مدرسے کو جو ہے وہ اڑا کے لے جائے گی اور ہم دیکھتے رہ جائیں گے؟ بھائی خدا کے لیے، نہ میرا مدرسہ کمزور ہے، نہ مدرسے والا کمزور ہے، نہ مدرسے میں پڑھنے والا کمزور ہے، یہ بات سب کو پتہ ہونی چاہیے۔ اس نظام کے تحت ایک ڈائریکٹر جنرل ریلیجیس ایجوکیشن آفس بنا۔ ہمارے یہاں پر ڈی جی صاحب موجود ہیں اور
इनके साथ तमाम लोगों के राब्ते हैं, उन हजरात के भी राब्ते हैं जिन्होंने 2019 में मुआहिदा किया। अब ये बात चूंकि इल्म में नहीं है बहुत से लोगों के, तो मैं अर्ज कर दूं कि 2019 में जो डायरेक्टर जनरल रिलीजियस एजुकेशन के हवाले से और रजिस्ट्रेशन के हवाले से मुआहिदा हुआ, उस मुआहिदे पर उन हजरात की डिमांड पर कहा गया नए बोर्डों वालों के दस्तखत नहीं होंगे, हम करेंगे। हमने कहा आप कर लें, हम आप मानते हैं। उस पर मुफ्ती तकी उस्मानी साहब के दस्तखत हैं, उस पर मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब के दस्तखत हैं, उस पर कारी हनीफ जलंधरी साहब के दस्तखत हैं। ये तमाम, ये जनाब जनाब साहब एक मुझे दे दें जी, ये इंशाअल्लाह ये तमाम हजरात के इस पे दस्तखत हैं। प्रोफेसर साजिद मीर साहब के, मौलाना यासीन जफर साहब के, मौलाना अब्दुल मालिक साहब के, साहबजादा अब्दुल मुस्तफ़ा हजारवी साहब के, डॉक्टर अताउर रहमान साहब के, मौलाना मोहम्मद अफजल हैदरी साहब के, डॉक्टर मोहम्मद नजफी साहब के, और गवर्नमेंट की तरफ से जनाब शफकत महमूद और अरशद मिर्जा साहब के सेक्रेटरी तालीम के दस्तखत मौजूद हैं। ये 2019 का मुआहिदा है, अगस्त 2019 में, जिसमें ये चीजें तय की गई थी। और ये सारा इंशाअल्लाह ताला डीजी साहब जो हैं वो पूरी तफसील के साथ आपको अभी इंशाअल्लाह आगाह करेंगे। इस मुआहिदे को 5 साल गुजर गए। मसाइल हैं, हम ये नहीं कहते हैं कि मसाइल नहीं हैं। मसाइल का हल टेबल पे होता है, उसको हल किया जाता है, वो खा बैंक अकाउंट के हवाले से हो, खा किसी और मसले के हवाले से हो। लेकिन मैं ये भी आपसे अर्ज करना चाहता हूं, ये दावा मुझे है और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजलो करम एहसान से है कि जब 9/11 के बाद बहरान का वक्त आया तो पंजाब में मैं एडवाइजर था, मुल्क को भी अफगानिस्तान के हवाले से देखता था। हमने एक एक मदरसे की चौकीदारी की है बिहम्दिल्लाहि तबारक व तआला, एक एक मदरसे की। हाँ, हमारा उस वक्त भी ये कहना था, आज भी ये कहना है कि अगर हुकूमत के पास, किसी इदारे के पास ये शवाहिद हैं कि कोई मदरसा गैर कानूनी काम में मुलव्वस है, दहशतगर्दी में मुलव्वस है, फिरका वाराना तशद्दुद में मुलव्वस है, तो वो जरूर ले आए, हम खुद उस मदरसे को ताला लगा देंगे। ये हमारा मौक़िफ़ उस वक्त भी था, आज भी है। चोई निसार साहब के साथ मीटिंग हो या मोइनुद्दीन हैदर साहब के साथ हो या बात की हो, आज हम सारे इसलिए जमा हुए हैं यहां कि 18,400 मदारिस ने इस सिस्टम पर एतमाद किया है, जिसकी तफसील इंशाअल्लाह आपको डीजी साहब बताएंगे। लाखों तलबा इन मदारिस के साथ वाबस्ता हैं, 2 नहीं, 4 नहीं, 100 नहीं, 200 नहीं, लाखों। अगर 18,400 मदारिस आगे रजिस्टर्ड हुए हैं वजारत तालीम के साथ, तो इसका मतलब यह है कि सिस्टम चल रहा है। ये 18 मदरसे नहीं है, ये 20 मदरसे नहीं है, ये 18,600 मदारिस हैं। 600 जो है वो मेरी तस्हीह की डीजी साहब ने, 18,600 मदारिस हैं। क्या हम इनको लवारस कर दें? क्या इस मुल्क के अंदर ये तरतीब आ जाए कि हमें किसी के वजूद से इनकार नहीं है, हम अपना वजूद रखते हैं, अपना काम कर रहे हैं, थोड़ा है या ज्यादा है ये कौम ने फैसला करना है और अल्लाह ने इसका अजर देना है। हम अपना काम कर रहे हैं, अपना काम करना चाहते हैं, किसी मामले में शरीक नहीं होना चाहते, किसी किस्म के फसाद में नहीं जाना चाहते। मैं ये सवाल करना चाहता हूं कि जो 18,400 मदारस हैं, आपने 2019 में कहा कि ये कानून है, अब ये मुआहिदा है, हमने मान लिया 2019 का मुआहिदा। आज आप कहते हैं इस मुआहिदे को पीछे फेंक के नया मुआहिदा करें। 4 साल बाद आप कहेंगे नहीं, उसको भी पीछे फेंक के नया मुआहिदा करें। तो ये मेरा जो लाखों तलबा का मुस्तकबिल है, उसका जवाबदेह कौन है? कौन होगा उसका जिम्मेदार? हम जिम्मेदार हैं अपने मदारिस के, हम जिम्मेदार हैं अपने इदारों के, हम जिम्मेदार हैं अपने तलबा के, हम जिम्मेदार हैं अपने असातिज़ा के। और उनके मुस्तकबिल के साथ ना हुकूमत, ना कोई इदारा, ना कोई जमात
किसी को भी नहीं खेलने देंगे। वफाकी वजीर तालीम मेरे भाई हैं बड़े, ये भी मौजूद हैं, वफाकी वजीर मजहबी उमूर भी मौजूद हैं। इनकी मौजूदगी में ये कहना चाहता हूं कि मुझे बताइए, ये जो लाखों तलबा 18,400 मदारिस से मुंसलिक हैं, आप कहते हैं आज कानून साजी नहीं होगी, और ये हम 4-5 साल पहला मुआहदा जिसपे मेरे जैसे तालिब इल्मों के दस्तखत नहीं है, जिस पर किसी छोटे मदरसे के तालिब इल्म के दस्तखत नहीं है, जिस पर उन तमाम बड़ों के दस्तखत है जो उस वक्त अपने अपने मदारिस के जिम्मेदार थे, आज आप कहते हैं हम ये नहीं मानते हैं, एक नया कानून लाएं, 4 साल बाद आप कहेंगे नया कानून लाएं, तो ये तो एक खेल बन जाएगा। मदरसे की बका इसमें है या मदरसे की बका मुस्तकिल निजाम में है? मदरसे की बका मुस्तकिल निजाम में है, मदरसे की बका वजारत तालीम के साथ मुंसलिक है। आज मुझे बताइए, जो स्कॉलरशिप चाहिए, जो बाकी उमूर चाहिए, मुझे आप बताइए वो जाके वजारत सनत से लेंगे हम? वजारत सनत कहेगी जाए आप फलानी फाउंड्री या फलानी स्टील मिल में जाके सनत की अपनी तस्दीक करवा लें। भाई खुदा का वास्ता है, सियासत हमें नहीं करनी है, हमें मदरसे के प्लेटफार्म से सियासत नहीं करनी। हमारे पास सियासत के लिए अलहदा प्लेटफार्म मौजूद हैं, लेकिन हम अपने लाखों तलबा के मुस्तकबिल के साथ भी किसी को नहीं खेलने देंगे। ये बहुत क्लियर बात है। हम अपने मदारिस के साथ भी किसी को नहीं खेलने देंगे। हमें हुकूमत से भी बहुत सारे शिकवे शिकायतें हैं, हमें और भी, वो हम अंदर कमरे में बैठ के इनसे बात करेंगे और कर भी रहे हैं, मसाइल हल भी हो रहे हैं। इसीलिए तो 18,400 मदारिस आके इनके साथ खड़े हुए हैं। तो आज के इस सारी जो मैंने तमहीद बांधी है, अर्ज की है, इसका बुनियादी मकसद ये है कि मदारस अरबिया इस मुल्क की खिदमत कर रहे हैं, मदारस अरबिया पाकिस्तान की खिदमत कर रहे हैं, मदारस अरबिया का ताल्लुक तालीम के साथ है और तालीम के साथ रहना चाहिए। लेकिन अगर कोई कहता है मुझे तालीम के साथ नहीं रहना, उनके लिए हुकूमत जो भी करे, लेकिन ये जो मौजूदा निज़ाम है, हमारी गुजारिश है, इल्तिजा है, इल्तिमास है, अर्ज है मोहतरम जनाब वजीर तालीम साहब आपसे भी, जनाब चौधरी सालिक हुसैन साहब आपसे भी, मोहतरम जनरल साहब आपसे भी, कि इस निज़ाम को मजबूत करें, इस निज़ाम को कमज़ोर ना करें, इस निज़ाम को मजबूत करें। जो वन विंडो ऑपरेशन तय हुआ है कि मदारिस की रजिस्ट्रेशन का, उसको कवी किया जाए, मजबूत किया जाए। बैंक अकाउंट का मामला, बाकी कोई मामला, वो हम आपके साथ इंशाअल्लाह अगले हफ्ते में जो आप इजलास बुला रहे हैं उसमें बैठेंगे, उसको हल करेंगे। मोहतरम जनाब अता तारड़ साहब हमारे वफाकी वजीर इत्तलाआत हैं और आप सब इनको जानते हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। मैं इनका भी शुक्रगुजार हूँ कि ये आज के इस इजलास में तशरीफ़ लाए। इससे कम से कम ये तो होगा कि मीडिया जो है वो मज़ीद हमारे मौक़िफ़ को जो है अच्छे अंदाज में बयान कर देगा। वैसे मीडिया के भाइयों से हमें कोई गिला शिकवा नहीं है, आपका हमारे साथ जो ताउन है हम शुक्रगुजार हैं।